Hello students, how are you all? As you all know that today we are going to complete our chapter, half portion we have done in our previous class. In previous class we were doing contraceptive methods, birth control methods, in which our video was paused due to some technical problem and only one method was left, that is surgical method. So today firstly we will complete surgical method, then we will do our next topics which are left in this chapter. So surgical methods are there. Surgical method, they can be in male or can be in female. दोनों ही के अंदर सर्जिकल मेथड वर्क करते हैं. इन मेल इट इज नोन एज वासेक्टोमी and in female it is known as tubectomy. As name is telling, vasectomy related to vas deferens and tubectomy related to fallopian tube. It is related to fallopian tube. What happened in this case, that you know that suppose this is the male reproductive system, these are testes and scrotum, inside them testis and then epididymis, and from here vas deferens goes, from here also vas deferens goes, and here urinary bladder is there जहाँ पे जाके meet होती हैं here, and then urethra, and then here this penis is there like this. Okay, so what happened in this case, that from male reproductive system this vas deferens are cut by a small incision. एक छोटे से कट की हेल्प से, माइनर कट की हेल्प से vas deferens को कट किया जाता है and then these are tied, फिर इनको टाई कर दिया जाता है. So what happen in this case, inside testis sperms are formed, यहाँ पे sperms बनते हैं, then they go to epididymis, then to vas deferens, then when they will come to vas deferens, आगे इनका ब्रिज टूट गया है, now they will not go towards penis and they will not be ejaculated inside the female reproductive system. Okay, so this is known as vasectomy. What happen in case of female in tubectomy, same things happen, that in female reproductive system also oviduct are there or fallopian tubes are there, and in fallopian tube small incision is there. ये fallopian tube है, इधर भी ये fallopian tube है, and a small incision cut is there in fallopian tube, and then after cut they are tied, इनको tie कर दिया जाता है. Same happens here, ovaries are there and inside ovary ovum are formed, and these ovum will be coming towards the fallopian tube. fallopian tube की तरफ आ रहे हैं, उस साइड पे आएंगे जहाँ पे इनकी fertilization होनी है. But ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूब को कट कर दिया गया है, then their bridge is broken, उनका ब्रिज टूट गया है तो ओवम नहीं पहुंच पाएगा. So no fertilization will take place, it means no pregnancy will be there. So surgical method की advantage क्या है, that these methods are permanent. ये method कैसे होते हैं, permanent होते हैं, 100% success होती है, no chance of failure. But disadvantage क्या है, that these methods are irreversible. इनकी reversibility poor है. अब कई बार रिवर्सिबल भी करना पड़ जाए, मीन्स वापस से प्रेगनेंसी करनी पड़ जाए, वापस से चाइल्ड कैरी करना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जिकल मेथड. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 टॉपिक्स कर लिए हैं. फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वी हैव डन, सेकेंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वी हैव डन, एंड थर्ड दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर डन. Today we are going to discuss our 4th topic of the chapter. Total 6 topics are there, 3 we have done, we are on 4th, and 4th topic is MTP. MTP. What is MTP? Its full form is medical termination of pregnancy. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हाउएवर सीधे शब्दों में तुम बोल सकते हो कि इट इज एबॉर्शन, बट वी कांट से एबॉर्शन. हमें कोई सोफिस्टिकेटेड सा नाम दिया इसको, क्या, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ये क्या होता है एमटीपी? इट इज इंटेंशनल
किसी इंटेंशन से, किसी पर्पज से, इंटेंशनल और वॉलंटरी, अपनी मर्जी से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, बेबी के बर्थ से पहले, उसके फुल ग्रो होने से पहले अगर ये करा दिया जाए, देन इट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड व्हाई इट इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से एमटीपी करवाना पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन है व्हाई एमटीपी क्यों करवाया जाता है। फर्स्ट रीजन इज दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड sexual intercourse. What you will write? Unwanted pregnancy due to unprotected intercourse. Unprotected coitus or intercourse, you can write any word. ठीक है, or if protected coitus is there, maybe जो हमने डिवाइस यूज़ की है, जो किसी कपल ने डिवाइस यूज़ की है, वो किसी वजह से काम नहीं कर पाई, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, देन एमटीपी इज डन। और सम केसेस आर देयर इन रेप्स केस ऑल्सो एमटीपी इज डन व्हेन मदर और फिटस आर इन डेंजर, किसी वजह से वो डेंजर में है, खतरा है उनको, कैन कोज डेथ ऑल्सो, देन एमटीपी इज ऑल्सो done. So these are some reasons that why MTP is done. And now question is when it is done. When it is done, कब की जाती है ये? कोई फिक्स टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी है कि 5-6 महीने हो गए एंड अब करके हमारा मन नहीं कर रहा है भाई करो इसको एमटीपी करो, या 2 महीने हो गए हमारा मन नहीं कर रहा एमटीपी करो। नो, इसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है कि कब ये होगी और कब नहीं होगी। फिक्स्ड टाइम पीरियड इज दैट अकॉर्डिंग टू एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स विद इन 12 वीक्स एमटीपी कैन बी डन। इट विल नॉट बी रिस्की, एमटीपी को 3 महीने के अंदर अंदर कर दे तो ये रिस्की नहीं होगी। ओके, सो इट कैन बी डन अप टू 12 वीक्स और यू कैन राइट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी हो जाए, देन इट विल नॉट बी डेंजरस। एंड इस केस में क्या होता है कि 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसल्टेशन शुड बी देयर, किसी एक डॉक्टर की सलाह वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि क्यों एमटीपी करवाई जा रही है। क्लियर? बट व्हाट हैपन, कुछ केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी की जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी की जाती है, लेकिन उसके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। व्हाट आई एम सेइंग दैट वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होनी चाहिए एमटीपी, जो इसका टाइम फिक्स किया है, बट कुछ ऐसे केसेस जनरेट हो जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी करनी पड़ती है, लेकिन उस दौरान किसी 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की, 2 डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। जब वो हाँ कर देंगे कि यू कैन डू तो की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो ऐसी कौन सी कंडीशन अराइज होते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी खतरा लिया जा रहा है? वो कंडीशन है ये कि अगर किसी वजह से मदर को या फिटस को किसी तरह का कोई खतरा, जान का खतरा है, डेथ हो सकती है, कोई ऐसे डिजीज हो गया, कोई और प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो ये एमटीपी की जा सकती है, बट 2 डॉक्टर्स की सलाह चाहिए, पूरा प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके बोल देगा कि मुझे एमटीपी करानी है और करो। नो, इट इज़ नॉट डन। समझ आ गया व्हेन इट इज़ डन। नेक्स्ट थिंग आती है हाउ इट इज़ डन, की कैसे जाती है ये, हाउ एमटीपी इज डन, कैसे की जाती है, कौन से मेथड हैं जिससे एमटीपी की जाती है। सो यू विल राइट हाउ इट इज डन। 2 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन, एक पिल है एमटी पिल, टैबलेट ले ली जाती है जस्ट, और उससे क्या होता है कि जो
एंटी प्रोजेस्टेरोन केमिकल होता है उसके अंदर। तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन जो प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करता है। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करेगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, एंड बाय द हेल्प ऑफ ब्लीडिंग जो भी जाइगोट या एम्ब्रियो बना है वो बाहर निकल आएगा। तो एम्प्टी पिल का RU486 नाम है उस पिल का, और इट कंटेन अ केमिकल mifepristone, and this chemical is anti-progesterone. It is anti-progesterone. कुछ केसेस में तो इसी से काम चल जाता है ये टैबलेट्स। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके ले लेगा, नो। सेकेंड मेथड D&C. Now what is this? It is dilation and curettage. Dilation and curettage. What happen in this case? Scraping of tissue from uterus. Scraping means खुरच देना, means स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से यूट्रस के टिश्यू को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होती है और ये बहुत कम केसेस में की जाती है जब ये वाली पिल काम नहीं करती है। ओके, सो दीज आर टू मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच एमटीपी कैन बी डन। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देयर, एक डाटा तुम्हें याद रखना है एमटीपी से रिलेटेड, एंड व्हाट इज दैट डाटा? दैट 45 to 50 million, 45 to 50 million MTPs are done per year। एक साल में 45 से 50 मिलियन MTP की जाती हैं, विच आर 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी। यानी अगर टोटल 100 प्रेगनेंसी है उनमें से 20% तो MTP हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ मदर्स को अपने कैरियर की वजह से या किसी और की वजह से उनको लगता है कि हम MTP करा लेते हैं, ये बीच में बहुत हिंड्रेंस फैक्टर है, वी शुड डू। ठीक है, बट इट कैन लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट ड्रॉबैक्स, MTP के ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है कि हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई भी छोटी मोटी जिसने थोड़ा बहुत डॉक्टर कोर्स किया है या छोटी मोटी कोई भी नर्स है, वो सोचते हैं कि हम कर सकते हैं MTP, और वो पूरी कोशिश में लग जाता है कि वी विल डू, और लोग करा लेते हैं। बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर मदर एज वेल एज फिटस ऑल्सो। मदर की हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, पहले ड्रॉबैक तो यही है। सेकेंड थिंग इज एमनियोसिंथेसिस टेक्निक हमने पढ़ी है। एमनियोसिंथेसिस टेक्निक से लोग सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं, सेक्स चेक करवा लेते हैं, जैसे ही पता चला दैट ओ इट इज़ फीमेल गर्ल, मीन्स इट इज़ फीमेल बेबी, देन दे विल डू MTP, वो MTP कर देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के फ़ायदे कम हो रहे हैं बट इनकी मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट MTP। नाउ विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is infertility and art. Infertility and art. Infertility. Fertility means ability to produce babies. Infertility means inability to produce babies. So what you will write? Inability to produce or to conceive, inability to conceive, inability to conceive even after unprotected sexual cohabitation, unprotected sexual cohabitation. Now what do you mean by these things? क्या मीनिंग है इसका? इनफर्टिलिटी क्या है? सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, दैट कोई कपल है जो इकट्ठे रह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनके बीच में, बट इवन देन दे आर नॉट गेटिंग, you know that the female is not getting conceived, it is not, she is not getting pregnant, कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं इवन देन। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या लगेगा कि अगर 1 month हो गया है उनको साथ रहते हुए,
प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो दे आर नॉट सेट टू बी इनफर्टाइल। 2 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, देन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल। बट व्हाट इज दैट टाइम, किस टाइम को हम लेके चलेंगे जिससे हम ये बोलें कि दैट पर्सन इज इनफर्टाइल। सो सम इंस्टीट्यूशन से अबाउट 1 ईयर, कि 1 ईयर अगर कोई सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रह रहा है एंड द फीमेल इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, देन वी से दैट द कपल इज इनफर्टाइल। But some institution take the time period of 2 year, but we will write 2 year only. हम 2 year ही लेंगे, मैक्सिमम पीरियड लेके चलते हैं ना, कि 2 साल का तो वैसे भी कपल प्लान कर ले, फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं। ओके, सो इनफर्टिलिटी समझ आया क्या होता है। नाउ इनफर्टिलिटी कैन बी इन मेल और कैन बी इन फीमेल, बट व्हाट आर सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी क्या बोलती है, दे ब्लेम फीमेल फॉर इनफर्टिलिटी। वो फीमेल को ब्लेम करते हैं कि तुम माँ नहीं बन पा रही हो, तुम मदर नहीं बन पा रही हो, यू आर नॉट एबल टू कंसीव, यू आर नॉट एबल टू प्रेग्नेंट। बट इट इज़ नॉट सो। अगर हम डाटा की बात करें और रिकॉर्ड की बात करें और बायोलॉजी की बात करें तो मेल आर मैक्सिमम इन नंबर विच हैव इनफर्टिलिटी। मेल के केस में ज़्यादा इनफर्टिलिटी होती है बजाय किसके, फीमेल के केस में। लेट्स डिस्कस दैट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, हाउ वाई मेल आर इनफर्टाइल और वाई फीमेल आर इनफर्टाइल। कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट मेल। फर्स्ट थिंग इज एज फैक्टर। इफ एज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग देन इनफर्टिलिटी चांस विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्पर्म का नंबर, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड रीजन एजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया, अ मीन्स एब्सेंस, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, नो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी है। थर्ड है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगो मीन्स लो स्पर्म काउंट, बन तो रहे हैं बट उनका नंबर क्या है, कम है। वी आर डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्पर्म नंबर कितना होना चाहिए, 200 to 300 बिलियन इन सिंगल इजैकुलेशन। ओके, अब 200 से 300 मिलियन स्पर्म चाहिए तब जाके कोई स्पर्म सक्सेसफुल होता है ओवम को फर्टिलाइज करने में। अब 200 तो मिनिमम माना है ना, अगर 100 मिलियन भी स्पर्म है ना, देन ऑल्सो वी विल से कि लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, 100 मिलियन प्रोड्यूस करके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट रीजन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स पेनिस जो है वो एबल नहीं होता है इतना लॉन्ग होने के लिए और हार्ड होने के लिए। मीन्स पेनिस इज नॉट इलोंगेटेड एंड हार्ड टू इजैकुलेट इट्स सीमन इनसाइड द फीमेल वेजाइना। कि पेनिस एलिजिबल नहीं है, वो इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है सीमन को इजैकुलेट करने के लिए भी, तब भी क्या होती है, मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा, अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट थिंग मे बी एन इंजरी, किसी वजह से टेस्टिस पे या पेनिस पे कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, देन ऑल्सो इट गेट नॉट इरेक्टाइल। सेकेंड रीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर इज मेजर। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इस मामले में। कैसे? लाइक ऑफिस का बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है, बहुत ही ज़्यादा वर्क बर्डन है, बर्डन ऑफ वर्क इज देयर, तो भी स्ट्रेस की वजह से या बर्डन की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पाता है। समझ आ गया? सो दीज आर सम रीजंस और सम फैक्टर्स which are responsible for male fertility. Clear? I hope everything is clear. Next thing is we will discuss about female infertility. Female infertile क्यों होती है? फर्स्ट तो वही रीजन रहेगा, एज, जैसे जैसे मैच्योर एज होती है तो इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंड रीजन PCOS. Now what are PCOS? It is polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. What happened? We discuss about the structure of ovary ना, हमने ओवरी का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें हमने ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल्स की बात की थी।
तो क्या होता है कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल है ये बजाय ग्रो होने के यहीं पे पड़ा रहता है और इसके चारों तरफ कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है एंड इट बिकम्स सिस्ट। ये क्या बन जाता है? सिस्ट बन जाता है। और ये सिस्ट यहीं पे जमा रहती हैं, ओवम निकलने देती नहीं है, ओवम रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसकी वजह से जब ये सिस्ट बन जाते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट नहीं होता है, ओवम बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है। थर्ड रीजन इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इट इज pelvic inflammatory diseases means what happen, fallopian tube है जो फीमेल की, suppose I make diagram here that ये एक ही साइड की मैं बनाती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये फेलोपियन ट्यूब है, तो इसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई स्कार बन जाता है, स्कार फॉर्मेशन इज देयर। इस स्कार फॉर्मेशन से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या बन रहे हैं? ओवरी में क्या बन रहे हैं? ओवम बन रहा है। एंड ओवम यहाँ से जाएगा, व्हाट विल हैपन? ये पहुँच नहीं पाएगा। कहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा? जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? कोई बैरियर आ गया। स्कार फॉर्मेशन की वजह से ओवम विल नॉट एबल टू रीच एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसकी वजह से अभी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्टरलिटी आ जाती है। समझ आया? सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होती है, फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है। अब हम इनकी इलाज पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हैं जो इनफर्टिलिटी को क्योर करने की गारंटी लेती है, लेकिन इंडिया में कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जिनको ये लीगली परमिशन है कि यू कैन डू द ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। आप इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओनली सम सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इनफर्टिलिटी हो गया है, अब हम पढ़ेंगे आर्ट के बारे में। अब आर्ट है, लोगों ने आर्ट डिस्कवर किया है। किस चीज़ की आर्ट? इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने की आर्ट। क्या कला है उनके पास? क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आर्ट के अंदर? वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट थिंग IVF, जो सबसे फेमस आर्ट है IVF। सेकंड ET, थर्ड ZIFT जिफ्ट, फोर्थ IUT, फिफ्थ गिफ्ट GIFT, एंड देन AI, देन IUI, and last is ICSI। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। दिखने में तो बहुत चीज़ें लग रही हैं कि बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, बट ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक बनने वाला, बहुत बड़ा नहीं है। एंड डेफिनेटली इन योर नीट एग्जाम एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, डेफिनेटली क्वेश्चन कम्स। Okay, so first technique which we will study now, IVF. What is IVF? It is in vitro fertilization. In vitro fertilization. In vitro means in lab. अगर in vivo होता तो in body. ठीक है? In vitro fertilization which is then followed by ET, embryo transfer. Which is followed by ET, embryo transfer. Clear? So what happened in this case? Suppose this is male, बहुत परेशान है, इनफर्टाइल है, ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा है बेचारे का। इधर फीमेल है, शी इज ऑल्सो सैड, मदर नहीं बन पा रही है। तो what the doctors do, they collect sperm from the male. वो मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, टेक इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, टेस्ट ट्यूब टेढ़ी हो गई हमारी, है ना, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया है, स्पर्म डल गया यहाँ पे। फ्रॉम फीमेल ओवम इज कलेक्टेड। अब देखो, मेल इज ऑलवेज रेडी टू गिव स्पर्म, वो तो स्पर्म दे देगा, बट फीमेल हैज़ सम टाइम ना, उसके पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है जब ओवम प्रोडक्शन हो जाती है, वो उसी टाइम पे दे पाएगी। बट हमें वेट नहीं करना है, उन कपल को वेट नहीं करना है, नहीं, जल्दी से बस बेबी चाहिए। तो what the doctor do, they give hormonal injection to female
वो फीमेल को हार्मोनल इंजेक्शन देंगे, और कौन से हार्मोनल इंजेक्शन? जो ओवम के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो उसके ओवरी में ओवम बन जाएगा एंड यहाँ से ओवम कलेक्ट कर लिया जाएगा एंड यहाँ पे एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में उस ओवम को डाल दिया गया है। ये क्या है? ओवम। दिस इज ओवम। यहाँ से स्पर्म को डाल दिया है अब हमने इस पेट्री डिश में, दिस इज स्पर्म। क्लियर? इट इज स्पर्म एंड इट इज ओवम एंड स्पर्म इज पुट हेयर। स्पर्म को यहाँ पे कब रखा? आफ्टर कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म के बाद ही हमने यहाँ पे रखा है ताकि वो जल्द से जल्द फर्टिलाइज कर जाए बस। अब यहाँ पे ओवम हमने हार्मोनल इंजेक्शन से प्रोड्यूस कराया ना, तो एक नहीं एक से ज्यादा ओवम भी बन सकते हैं। तो नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस स्पर्म एंड ओवम विल टेक्स प्लेस एंड व्हेन दिस इज आवर स्पर्म एंड इट इज आवर ओवम, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनने वाला है? जाइगोट। व्हाट इज फॉर्म्ड? जाइगोट। अब क्या करना है? इस जाइगोट को ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब में। बना लो फेलोपियन ट्यूब। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है हमारी। दिस जाइगोट विल बी ट्रांसफर टू दी फेलोपियन ट्यूब ऑफ मदर जो इनफर्टाइल है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कब? अब इस मदर को बहुत जल्दी है कि नहीं मेरे बेबी को तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो करना है। हाउएवर हम लैब एनवायरनमेंट में ग्रो करा सकते हैं उसको नेचुरल जैसी कंडीशंस देके, बट नहीं, मदर को तो जल्द से जल्द अपना बेबी चाहिए उसकी बॉडी में। तो हम क्या करते हैं? 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक या 8 सेल तक अगर स्टेज तक मदर रुक जाते हैं कि शी कैन वेट, वो पेशेंट है, तो हम 8 ब्लास्टोमियर से पहले तो कर ही नहीं सकते। 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट। ये क्या बन गई? जिफ्ट। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को फेलोपियन में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? बट सम मदर्स हैव पेशेंस। कुछ मदर पेशेंट कर लेती हैं। वो क्या करती हैं? वो कह देती कि नहीं कोई बात नहीं, जब वो प्रॉपरली ग्रो कर जाए तब मेरी बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देना। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर बन जाती हैं, 8 से ज़्यादा सेल बन जाती हैं, तो कहाँ ट्रांसफर होता है? इट विल बी नाउ ट्रांसफर टू दी यूट्रस। अब उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? यूट्रस में। ठीक है, इसको बोलते हैं IUT। ये क्या है? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो IVF हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज डन। देन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये क्या हो रहा है? ये सारी प्रोसेस क्या है? एम्ब्रियो को ट्रांसफर। एक्चुअल में जाइगोट थोड़ा ना ट्रांसफर हो रहा है, जाइगोट तो जस्ट मीटिंग के बाद बनती है, वो स्टेज है। जाइगोट में जैसे डिवीजन स्टार्ट हो जाते हो तो एम्ब्रियो हो जाता है, तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो सारी हो रही है इसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में जब जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें 8 ब्लास्टोमियर तक तो जिफ्ट, और 8 से ज़्यादा होने पर यूट्रस में ट्रांसफर करें तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT। सो ये भी हो गया है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। हो गई ना? एक ही प्रोसेस में हमने 4 चीज़ें कर ली। ठीक है। अच्छा, IVF से जो बेबी जनरेट होते हैं उन बेबी को क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत नाम सुना होगा तुमने इसके बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। IVF से जो बेबी जनरेट हुए, प्रोड्यूस हुए, दीज आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, और इस प्रोग्राम को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। एंड ये कंडीशन आई ही क्यों? IVF करना ही क्यों पड़ा? किस कंडीशन में करते हैं? 2 कंडीशन है। या तो फीमेल को कोई इस तरह की डिजीज है, उसकी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, ओविडक्ट ब्लॉक हो गई है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से ओवम फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म इतने नहीं बन रहे हैं कि वो ओवम तक पहुंच पाए प्रॉपरली, वो वेजाइना और यूट्रस तक ही मरमरा जाते हैं क्योंकि अटैक होता है ना जबरदस्त वाला स्पर्म के ऊपर, तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, स्पर्म काउंट कम है। इन 2 कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसको बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा बेबी? जिसको कल्चर कराया जाए लैब में और कंसीव फिर मदर कंसीव कर ले, आफ्टर कल्चरिंग उसको मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। एंड डू यू नो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ बना था?
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, लुइस ब्राउन वॉज द नेम। ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा नीट में क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज यू कैन लर्न दिस। इन इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, मैंने क्या लिख दिया, ये BABY विल बी देयर। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, इंडिया में कहाँ बना, इन मुंबई, ठीक है, उसका नाम था कुमारी हर्षा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंग्लैंड एंड दैट वाज इन 1978 एंड इन इंडिया इट वाज इन 1986। ठीक है, समझ आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। उसके बाद हम करेंगे IVF हो गई, ET हो गया है, जिफ्ट हो गया है, IUT हो गया। नाउ विल डू गिफ्ट, GIFT। गिफ्ट, GIFT। अब गिफ्ट देखो ज़्यादा किसको पसंद होते हैं, फीमेल को होते हैं, है ना, मेल को तो गिफ्ट पसंद नहीं होते हैं इतने। अच्छा, तो गिफ्ट जो है ये टेक्निक किसके लिए है, फीमेल के लिए है। और कौन से फीमेल, विच कांट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम नहीं बना पा रही हैं बेचारी। इससे पहले ओवम तो बन रहा था लेकिन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई थी किसी वजह से। तो गिफ्ट जो टेक्निक होगी ये उन फीमेल के लिए जो ओवम प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई डोनर होगी, कोई डोनर फीमेल है जो अपना ओवम देने के लिए रेडी है, वो सेल कर रही है कि लो मेरा ओवम ले लो, मुझे पैसे दे दो। ठीक है, डोनर फीमेल विल गिव ओवम, किसको देगी, जिसको ज़रूरत है। अनदर फीमेल विच कांट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो दिस ओवम विल बी ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ दिस फीमेल, फेलोपियन ट्यूब ऑफ दिस फीमेल। इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ओवम सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, पहुंच गया। एंड देन इंटरकोर्स विल टेक प्लेस, उसके बाद इंटरकोर्स होगा। एंड इंटरकोर्स में 200 से 300 मिलियन स्पर्म आएंगे, इन विच वन विल बी लकी टू फर्टिलाइज द ओवम। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गिफ्ट। अब फुल फॉर्म क्या है गिफ्ट की, लेट्स राइट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, फेलोपियन में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गिफ्ट। समझ आ गया, इसके बारे में बस हमने इतना ही करना है। उसके बाद हम करेंगे AI। नाउ विल डू AI। व्हाट इज AI? इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन सबको पता है, इंसेमिनेशन मीन्स इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन inside the female body by the male is known as insemination। आर्टिफिशियली अगर ये करवाया जा रहा है तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ऐसी कंडीशन अराइज ही क्यों हुई कि आर्टिफिशियल करवाना पड़े? 2 रीजंस आर देयर। या तो नो इरेक्शन, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर लो स्पर्म काउंट, स्पर्म का नंबर कम है। ये 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई जाती है। सो हाउ इट इज डन, इफ पेनिस इज नॉट इरेक्टेड, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो व्हाट हैपन, मेल की से स्पर्म कलेक्ट कर लिए जाते हैं एंड देन दीज स्पर्म्स आर टेकन इनटू अ सिरिंज, सिरिंज में ले लिया इन स्पर्म को, एंड देन दीज स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। पेनिस इरेक्ट हो नहीं रहा है और वेजाइना तक स्पर्म पहुंचा नहीं पा रहा है। So what is done? Sperms are collected from the male and then they are taken into syringe and don't you think ये simple सी syringe होते हैं, बहुत सस्ता सा होने वाला है। These processes जो हम पढ़ रहे हैं these are very costly, very expensive। ठीक है, तो syringe में लेके sperm को फीमेल बॉडी की वेजाइना में अपर पार्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजाइनल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ट्रांसफर। Now the ovum will come and fertilization will takes place। लो स्पर्म काउंट में क्या है, स्पर्म का नंबर कम है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने स्पर्म को इस सिरिंज में लेके वेजाइना तक पहुंचाया था, अब हम इस स्पर्म को सिरिंज में लेके यूट्रस तक पहुंचाएंगे, टू यूट्रस। किस लिए कर रहे हैं ऐसा?
ताकि डिस्टेंस कम हो जाए, जल्द से जल्द यूट्रस तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द फिर ओवम तक पहुंच जाए, क्योंकि पहले ही स्पर्म का नंबर कम है। वेजाइनल फ्लूइड मार देंगे स्पर्म को, यूट्रस के फ्लूइड मार देंगे, अटैक करेंगे, बचेंगे कितने? तो इसीलिए वेजाइनल से तो बचाएं कम से कम, और यूट्रस के भी अपर पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं नियर टू फेलोपियन ट्यूब, ताकि जल्द से जल्द वो ओवम से मीटिंग करके फर्टिलाइजेशन कर ले और जाइगोट बना दे। सो दिस टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इस टेक्निक को बोलेंगे IUI। किसको? जब स्पर्म को सिरिंज में लेके यूट्रस तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये हो जाएगा इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन हो रहा है, दिस इज इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। समझ आया? तो गिफ्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया। ठीक है, लास्ट हमारी जो टेक्निक बची वो कौन सी है? ICSI। ICSI। ओके, तो ये लास्ट टेक्निक है आर्ट में। सारी कला दिखा दी हमने, अब एक आखिरी में और दिखा दो कला, क्या है वो? ICSI। इट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टेक्निक इतनी सस्ती नहीं है जैसे वो हमने फटाफट से इंसेमिनेट करा दिया, भाई सीरीज में फिल करो, ओवम तक पहुंचा दो। ये टेक्निक स्पेशल केसेस में यूज होती है, यूज्ड इन स्पेशल केसेस। और वो स्पेशल केस क्या है? ओल्ड एज। जब मेल ओल्ड एज का हो जाता है एंड उसको बेबी चाहिए है, बट इस केस में स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। क्या लिखोगे? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म बिकम लो, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। फिर क्या किया जाता है इसमें? स्पर्म लेके, और जैसे ये है हमारी पेट्री डिश, यहाँ पे हमने ओवम को ले लिया है, और यहाँ पे दिस इज ओवम और दिस इज स्पर्म। स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म इज इंजेक्टेड इनसाइड ओवम, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया, इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बन गया। तो ये ऐसे ही नहीं कि किसी भी केस में यूज कर लिया जाएगा। एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था इस टॉपिक से, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ओल्ड एज में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो वो कौन सी है? ICSI। ठीक है, समझ आ गया? सो ऑल आर्ट आर डन, सभी टेक्निक हमने पढ़ ली हैं। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, देन हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, और वो कौन सा टॉपिक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? STDs, और दे आर ऑल्सो नोन एज VD, और दे आर ऑल्सो नोन एज RTI। ठीक है, STDs मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, VD क्या है? वेनरल डिजीजेस। RTI क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तीनों चीजें एक ही है, इनको पढ़ेंगे। अब क्या होते हैं ये? STDs are those disease which are transmitted by sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो डिजीज फैलती हैं, होती हैं, उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या विनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। समझ आया? मोस्ट प्रोन एज 15 to 24 ईयर्स के जो टीनेजर्स हैं, उनमें ये डिजीज सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है उनको, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है इनकी सिम्टम्स। सिम्टम से पहले करेंगे ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिटेड होती है। यू विल राइट विद दैट हाउ ट्रांसमिटेड,
कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे फैलती हैं ये। फर्स्ट रीजन जेनाइटल ट्रैक्ट से, जेनाइटल ट्रैक्ट से फैलती हैं, होती हैं। सेकंड रीजन ओरोजेनाइटल ट्रैक्ट, माउथ और जेनाइटल ट्रैक्ट से फैलती हैं। थर्ड इज जेनाइटल एनल ट्रैक्ट, जेनाइटल एनल ट्रैक्ट। एनल जो है, एनस जो है, उसकी अनस की जो इनर लाइनिंग होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करती है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है। और भी रीज़न है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज यूज़ की है तो उसको क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन सिरिंज और इंजेक्शन, वो इंजेक्शन या वो सिरिंज यूज़ कर लिया, वो निडल यूज़ कर लिया जो कि इन्फेक्टेड पर्सन में भी यूज़ की, तो ऐसा कभी कभी लापरवाही डॉक्टर से हो जाती है, तो भी ये डिजीज़ फैलती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। जब एक पर्सन का ब्लड दूसरे को चढ़ाया जाता है, दूसरे को ज़रूरत है, और बाई चांस जिसका ब्लड चढ़ाया गया है दूसरे को वो इन्फेक्टेड था, उसको डिजीज़ थी, तो भी ये डिजीज़ फैलती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, मदर से बेबी तक भी डिजीज पहुंचती है। समझ आ गया? एनी डाउट इन दिस थिंग? सो ट्रांसमिशन मेथड हमने किए कि कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। अब हम करेंगे सिम्टम्स, कि इन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे तो ये डिजीज ऐसी भी हैं जो साइलेंट हैं, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, या कुछ ऐसे कि अर्ली डिटेक्शन हो ही नहीं पाती, सिम्टम पहचान ही नहीं पाते कि ये एसटीडी का सिम्टम है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या हैं इन डिजीज के? ईचिंग, स्वेलिंग, स्लाइटली पेन, और मे बी एनी अदर। ऐसे ऐसे सिंपल से सिम्टम होते हैं स्टार्टिंग में। बर्निंग सेंसेशन ऑल्सो इन जेनाइटल ट्रैक्ट, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ पे ये सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, फिर ये अगर इनकी अर्ली डिटेक्शन ना हो या किसी को बाई चांस ऐसा फीलिंग हो रही है और सोशल स्टिग्मा की वजह से, बेइज्जती की वजह से, इंसल्ट की वजह से वो फील करे कि मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए, किसी को ना बताए, या अर्ली डिटेक्शन हो ना इन सिम्टम की, तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच जाते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी ना हो, इनफर्टिलिटी हो जाए, सर्वाइकल कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है, एंड सम टाइम एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन इज देयर, कि सिम्टम दिखते ही नहीं है, सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम दिखते ही नहीं है कि सिम्टम भी है, कोई पता ही नहीं चलता एसटीडी है, और बहुत भयंकर रूप ले लेती है, वो बहुत बढ़ जाती है जब उसकी कंडीशन ऐसे हो जाती है कि इनक्यूरेबल, ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है उसका। समझ आया? उसके बाद हम करेंगे सिम्टम्स के बाद टाइप्स ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज कितने टाइप की होती हैं? एसटीडीज आर मेनली 3 टाइप्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में या नीट में। फर्स्ट आर बैक्टीरियल एसटीडीज, बैक्टीरिया से होने वाली। सेकंड वायरल एसटीडीज, वायरस से होने वाली। एंड थर्ड प्रोटोजोन एसटीडीज, प्रोटोजोआ से होने वाली। ठीक है, तो बैक्टीरियल एसटीडीज में फर्स्ट जो है वो है गोनोरिया, गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है, इसको कौन करता है? निजेरिया, निस्सीरिया, गोनोरिया ये बैक्टीरिया का नाम है जो ये डिजीज करता है। स्पेल चेक कर लेना, निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया डिजीज है और कॉजेटिव एजेंट ये है। सिम्टम वगैरह तुम्हें इनके नहीं करने हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और नीट एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। सेकंड है सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज है। एंड ये कौन करता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम ये बैक्टीरिया जो ये डिजीज करता है। थर्ड डिजीज है क्लेमाइडियासिस,
क्लेमाइडियासिस, इस इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट डिजीज, ये चुपचाप आती है, कोई सिम्टम नहीं होता इसका, इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज बोलते हैं। कौन करता है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। तो ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होते हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट मैंने तुम्हें बता दिए किस किस से ये होती है, समझ आ गया। अब हम वायरस से होने वाले डिजीज की बात करेंगे, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है। बहुत इजी है, याद रखना, 3 H लिखो, H H H, ठीक है। दिस इज HIV इन्फेक्शन, HIV से होने वाली यानी एड्स। दिस इज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और किससे होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। दिस इज हब्स, और किससे होती है? हब्स सिंप्लेक्स वायरस, हब्स सिंप्लेक्स वायरस, समझ आया। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर भी एक एसटीडीज ही मान लेते हैं, या यूं कह लो कि ये बढ़ती जाए तो सर्वाइकल कैंसर करती हैं, और वो किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है, जो फाइनली डेथ करके ही मानता है, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज कौन है? प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। दिस इज योर होमवर्क, बड़े बड़े लेटर्स में लिख लेना, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज, या मैं ही बताऊं? चलो बता देते हैं, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस किससे होती है? ट्राइकोमोनास से होती है, ठीक है। सो दीज आर एसटीडीज, सेक्सुअल